Hello students, welcome to the Bright Skills Educator. This is video recorded lectures of Geometry Problem Set 7. In this lecture we are going to solve the question number 6 onwards. Students, see this video carefully. After watching this video, you share this video with your friends. Now let us start question number 6 because up to question number 5 we have already done in the previous lecture. Students, this is question number 6. I am reading the question number 6. The diameter and thickness of a hollow metal sphere are 12 cm and 0.01 meter. The density of metal is 8.88 gram per centimeter cube. Find the outer surface area and mass of the sphere. Okay students, see what is given. Diameter of hollow metal sphere, cross section is given already. Diameter is 12 centimeters, so radius will be 6 centimeters. This is outer radius. And its thickness is given 0.01 meter. 0.01 meter should be converted into centimeter. So all you know 1 meter is equal to 100 centimeter. So 0.01 should be multiplied with 100. That means 0.01 into 100. 0.01 into 100. It will come 1 centimeter. Understood? So thickness is 1 centimeter. So inner radius कितना होगा? देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये आउटर रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है 1 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस में से थिकनेस ये 1 सेंटीमीटर माइनस किया तो इनर रेडियस ये 5 सेंटीमीटर आ गया. तो R1 6 सेंटीमीटर, R2 is 5 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? So now volume of solid part, since it is hollow, so inside it is vacant, there is air. So what is actual volume of the metal? That should be volume of solid metal is equal to outer volume minus inner volume. Outer volume is 4 upon 3 pi R1 cube minus inner volume is 4 upon 3 pi R2 cube. Students, here 4 upon 3 pi is common. R1 cube minus R2 cube. 4 upon 3 pi is 22 upon 7. R1 is 6, so it is 6 cube. R2 कितना है? 5 है, तो it is 5 cube. अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व किया गया है. 4 upon 3 pi is 22 upon 7. 6 cube is 216, मतलब 6 into 6 into 6. 5 cube, 5 into 5 into 5, 125. 4 upon 3, 22 upon 7. 216 में से 125 माइनस किया तो 91 आ गया. ये तो वॉल्यूम हो गया. नाउ डेंसिटी ऑफ मेटल इज गिवन 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. स्टूडेंट्स, साइंस में आपने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितना है? 8.88. वॉल्यूम कितना है? 4 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 91. तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में इतना आ गया 3386.24 ग्राम. ये आपका मास ऑफ द स्फीयर. स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में आंसर जो है इट इज 3385.94. वाई? Because in textbook pi is given 3.14 and I have taken 22 upon 7. If you want this answer, instead of 22 upon 7, you can substitute 3.14. Okay. One more thing you have to find, outer surface area. Outer surface area of sphere, formula is 4 pi r square, 4 into 3.14 into 6 into 6. So it is 144 into 3.14. After multiplying both the quantities, you will get 452.16 centimeters square. So mass of sphere is 3386.24 gram and outer surface area is 452.16 centimeters square. So this is question number 6. Now in the next question we will see
question number 7. So just note down this sum properly. From beginning, see here, it is from beginning. Slowly we'll move downwards. Student, this is question number 7. Question number 7, there is a cylindrical bucket. You can see in the diagram. Its diameter is given 28 centimeter and height is given 20 centimeter. It is full of sand. If the same sand of bucket is poured on the ground, it forms this conical shape. This is sand which is kept in a bucket, and this sand is poured on the ground, it forms a heap of a conical shape. Okay, its height is given 14 centimeter. You have to find area of base. Means this, see, area of base is circular, that means pi r square you have to find. Okay, so let us solve it. Since it is related to volume, diameter is 28, so radius is 14, height of bucket is 20 centimeter. Volume of bucket, it is cylindrical shape, so it is pi r square h, 22 upon 7 into 14 into 14 into 20 centimeter square. Height of cone is given 12 centimeter. Since this sand is poured here, so volume of both will be same. So volume of cone is equal to volume of sand in a bucket. Volume of conical shape sand is equal to volume of cylindrical bucket. Volume of conical shape sand 1 upon 3 pi r square h is equal to, see, the value of volume of bucket is written here, 1 upon 3. See student, this pi r square is base area. Pi r square is base area, so that is written here. Pi r square base area. 1 upon 3 into base area into 14 is equal to this much. Base area, 3 will go up and 14 will come down. And after calculations you can do it, some cancellations. See here, 7 1 is 7, 7 2 is 14 is cancelled. 7 1 is 7, 7 2 is 14. This 14 is cancelled. 22 into 2 into 20 into 3. इन चारों को मल्टीप्लाई करो, you will get 2640 centimeter square. So this is your answer. So base area of cone is 2640 centimeter square. This is question number 7. Note down it. Students, question number 8. Radius of metallic sphere is 9 centimeter. It was melted. To make a wire of diameter 4 millimeter, find the length of the wire. Students, see this sum carefully. Radius of metallic sphere is 9 centimeter. Get the volume of metallic sphere. Why we are getting volume? Because it is melted. So volume of metallic sphere 4 upon 3 pi r cube, 4 upon 3 pi into 9 into 9 into 9. I am not multiplying it here. Leave as it is. Diameter of wire is 4 millimeter. So radius of wire is 4 upon 3, that is 2 millimeter. 2 millimeter should be converted into centimeter, 0.2 centimeter. This is radius. Since metallic sphere was melted to make wire that is cylindrical shape, therefore volume of wire is equal to volume of sphere. Volume of wire means cylindrical shape है तो pi r square h is equal to, this is volume of sphere. We have already found it here. So students, see very carefully, pi and pi will be cancelled, or instead of cancelling these three quantities, pi into 0.2 into 0.2 should be transferred right side. H is equal to 4 into pi into 9 into 9 into 9 upon 3 is already here, pi into 0.2 into 0.2. See, this is simply calculation, purely calculations. And after doing all the calculations, you will find 24300.
24,300 centimeter. 24,300 centimeter. And you know 1 meter is equal to 100 centimeter. So you have to convert into meter. So it should be divided by 100 centimeter. So length of wire is 24,300 centimeter upon 100. 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. तो योर आंसर इज 243 मीटर्स. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया. सो नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपरली. Student, this is question number 9. Radius of circle is given, area of sector is given. You have to find theta, and it is very easy. Simply you can see the solution and get it. Theta comes 150 degree, and length of arc theta upon 360 into 2 pi r. Theta came 150. 150 upon 360 into 2 into pi into 6. After calculation, length of arc will come 5 pi centimeter. So measure of arc is 150 and length of arc is 5 pi centimeter. This is very easy sum, 2 mark sum, easily you can do it. Students, this is question number 10. This is the diagram of question number 10. See the diagram and figure very carefully. Then we'll see the solution. Segment AB is a chord of circle with center P. PA is given 8 and height of this triangle is given 4. If it is height, that is why angle Q is 90 degree. Okay. So see carefully, in triangle AQP, it is the right angle triangle. It is 8, it is 4. So students, if we see carefully, PQ is half of AP. PQ 4 है, ये 8 है, तो 8 का हाफ हो गया ना 4. मतलब PQ अपॉन AP इज इक्वल टू 4 अपॉन 8. हाफ हो गया तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. तो PQ इसका अपोजिट एंगल है, तो ये कितना है? ये 30 डिग्री है. अब आप देखो, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एंगल P कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया. इस तरह से ट्राइंगल AQP 30, 60, 90 का ट्राइंगल हो गया. क्लियर हुआ? तो AQ कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू AP. अब एक चीज और देखो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल AQP और ट्राइंगल BQP दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. क्यों? PA कॉन्ग्रुएंट PB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. PQ कॉन्ग्रुएंट PQ, कॉमन साइड. एंगल AQP कॉन्ग्रुएंट एंगल BQP, ईच इज 90 डिग्री. तो साइड हाइपोटेनस टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा ना. 60 + 60 मिलके दोनों, ये पूरा कितना हो गया? 120 हो गया. एंगल AP भी कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया. AQ जितना होगा BQ भी उतना ही होगा. करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम बढ़ते हैं सम के सॉल्यूशन की ओर. जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही सॉल्यूशन में है. स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक ओपन रखिएगा, डायग्राम साथ में रखिएगा. ट्राइंगल AQP आप देख रहे हो, उसमें एंगल AQP 90 डिग्री है. PQ अपॉन AP जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया 4/8, 1/2. AP को ट्रांसफ़र किया तो PQ कितना आ गया? हाफ AP. तो कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90, एंगल PAQ 30 हो गया. एंगल PAQ 30 हो गया तो एंगल APQ 60 हो जाएगा. आप फिर से वीडियो पीछे जाओ और देखो, डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है. तो ये 30, 60, 90 ट्राइंगल हो गया. जब ये 30, 60, 90 ट्राइंगल हो गया, फिर से देख लो, ये PQ अपॉन AP इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू हाफ AP. तो इट इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. तो ये 30, ये 90 है, तो एंगल P 60 हो गया.
तो ये भी 60 हो जाएगा, पूरा एंगल 120 हो गया। आई होप इतना समझ गया होगा आपको। फिर से सोल्यूशन पे जाते हैं। AQ is, since AQ is side opposite to 60 degree, so AQ is equal to √3/2 into AP by 30-60-90 theorem. AQ is equal to √3/2 into 8, 2 1 2, 2 4 8, it is 4√3. ट्राइंगल AQP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BQP कैसे है, आप फिर से देखो, डायग्राम देखो। PA कॉन्ग्रेंट PB, रीजन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। PQ कॉन्ग्रेंट PQ कॉमन साइड। एंगल AQP कॉन्ग्रेंट एंगल BQP, ईच इज 90। डायग्राम देखते रहो। तो कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, हाइपोटेनस साइड टेस्ट से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए स्टूडेंट्स, तो एंगल APQ दिखाई दे रहा है, डायग्राम में देखो टेक्स्ट बुक में। एंगल APQ कॉन्ग्रेंट एंगल BPQ इज इक्वल टू 60। दोनों 60-60 हैं, दोनों एंगल ऐड कर दो तो एंगल APB कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APQ, दैट इज 2 इंटू 60, 120 डिग्री। एंगल APB आ गया। अब देखो AQ और BQ भी दोनों इक्वल हैं, AQ और BQ भी दोनों इक्वल है, ध्यान से देखो। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये Q BQ, ये 4√3 है तो ये भी 4√3 आ जाएगा, दोनों मिलके 8√3 हो जाएंगे। ए भी कितना हो गया, 8√3। स्टूडेंट्स फिर से कॉन्सेप्ट देखते हम लोग। हमारा ये 30-60-90 लाने का मेन पर्पस था कि हमको ए बी पता होना चाहिए। ए बी 8√3 आ गया, देखो ध्यान से, आई एम राइटिंग हियर ए बी इज इक्वल टू 8√3 और पी क्यू 4 है। तो ट्राइंगल ए पी बी का एरिया फाइंड हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू पी क्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, सोल्यूशन में आगे हम देखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मीन्स ये पूरा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स सैडेड पोर्शन देख रहे हो आप, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल को देखो, सैडेड नहीं है ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन मिल गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। देखो एरिया पूरा सेक्टर है, सेक्टर में से ट्राइंगल को ये वाला पार्ट निकाल दिया तो सैडेड पोर्शन मिल गया ना। सैडेड के ऊपर देखो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल रिमूव हो गया तो कितना मिला, सैडेड पोर्शन मिल गया। वही यहाँ पे हमें फाइंड करना है। सो अगेन हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 8√3 आ गया, उतना समझा ना, उसका सोल्यूशन देख लो। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है सेम वही चीजें हैं, देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू AQ प्लस BQ, 4√3 प्लस 4√3, 8√3। अब हमको जो चाहिए था वो सारी क्वांटिटीज मिल चुकी हैं। अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर AXB, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 120 डिग्री आया है ना। एंगल APB 120/360 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 8। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अब देखो कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ी हैं, तो ये पूरा सॉल्व करके आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, हाफ इंटू बेस इज AB, हाइट इज PQ, हाफ इंटू 8√3 इंटू 4, इट इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16√3 सेंटीमीटर मतलब 16 इंटू 1.73 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई देम, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में फिलअप आपको करना है, दोनों मल्टीप्लाई करो, जो आता है यहाँ पे लिखो। ये पूरा सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, जो आता है यहाँ पे लिखो। और बहुत ईजी है, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36, 3 आ गया, 8 8 जा 64 इंटू 3.14 अपॉन 3 कर दो, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। 16 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा।
फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी, मतलब दिस वन minus this one, that will be your answer. That is why I left some space. I have not done it purposely, so you do it by yourself. Clear? Now students, question number 11. See the diagram carefully. Quadrilateral ABCD is a square. See carefully, ABCD is a square and it is inscribed in the sector APCQ. Sector APCQ देखो, APCQ, इसके अंदर ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है. द रेडियस ऑफ सेक्टर BXD इज 20. BXD मतलब ये वाला, BC 20 है, ये 20 है, स्क्वायर है तो ये चारों साइड 20-20 हो जाएंगे. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. यू हैव टू गेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. See, the only fill-ups are there, so we have to do the fill-ups. Side of square ABCD, radius of sector CXB, it is 20 centimeter. Area of square is equal to side square, 20 का स्क्वायर 400 यहाँ पर आ जाएगा. Area of shaded region inside the square, area of square ABCD minus area of sector CBXD. एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना है? इट इज़ 400. यहाँ पे 400 फिल करो. थीटा ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया है, इसको सॉल्व किया तो 314 आया. यहाँ पे 400 माइनस 314, 400 में से 314 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 86 आएगा. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर कितना हो गया? 86 स्क्वायर सेंटीमीटर. I am not filling anything here. You listen and you fill it carefully. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा. क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं. रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर. बिगर सेक्टर ध्यान से देखना, ये बिगर सेक्टर का रेडियस ये होगा, ये जो डायगोनल है आपका ये वाला. दिस इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD. डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू साइड. साइड 20 है तो डायगोनल 20√2 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 20√2. ये डायगोनल AC. तो रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर कितना हो गया? 20√2. कम टू द हियर. रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD, दैट इज 20√2. एरिया ऑफ शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर PCQ. अभी एरिया ऑफ सेक्टर PCQ फाइंड करेंगे और उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD को माइनस करेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर PCQ कौन सा है? ये वाला पूरा एरिया ऑफ सेक्टर PCQ है पूरा. तो थीटा 90 डिग्री है, रेडियस 20√2 है. थीटा 360 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD 20 स्क्वायर, यहाँ पे 20 आएगा. आप फिल कर लो. थीटा 90/360 इंटू 3.14, रेडियस मैंने बताया था ना 20√2 है, 20√2 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. ये पूरा चीज़ सॉल्व करना पड़ेगा आपको. ये पूरा चीज़ सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 628 आएगा. कितना आएगा? 628 माइनस 400. 628 में से 400 माइनस किया तो यहाँ पे 228 आएगा. कितना आएगा? 228. तो ये 228 आ गया और पहले का शेडेड पोर्शन का कितना था? 86 था. यहाँ पे देखो 86 आया है तो दोनों को ऐड कर दिया. 86 प्लस 228 कितना हो गया? 314 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरह से आप फिल करोगे. क्लियर? ध्यान से सुन के फिल करना है. एक बार 11 क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देख लो, जैसा मैंने पहले बताया है कैसे फिल करना है और यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया है पूरा. वीडियो स्टॉप करके पूरा नोट डाउन कर सकते हो. स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. इट इज ऑल्सो एक्टिविटी टाइप. यू कैन सी द डायग्राम केयरफुली. Let the radius of bigger circle be R, capital R. Bigger circle means from here. ध्यान से देखो, its center is this one.
तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, ऑल फोर आर इक्वल टू आर। ध्यान से फिर से देखो, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, all are considered R here. OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to R. Clear? We have assumed PQ is equal to PA is equal to small r. PQ, ध्यान देना, PQ is the radius smaller circle. PQ is equal to PA is equal to small r. Right? So what about OQ? OQ देखो ध्यान से यहाँ तक कैपिटल R है, ओ बी माइनस क्यू बी करोगे तो ओ क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी माइनस बी क्यू, तो आर माइनस 9, यहाँ पर क्या आएगा फिलअप में, कैपिटल आर माइनस 9। आई एम नॉट फिलिंग, यू फिल इट, कैपिटल आर माइनस 9। नीचे वाला देखो, ओ ई इज इक्वल टू ओ डी, ओ ई इज इक्वल टू ओ डी माइनस डी ई। ओ ई कहाँ पर है देखो ध्यान से, ओ ई, तो ओ डी में से ई डी को माइनस करेंगे, तो ये कैपिटल आर माइनस 5 करोगे तो आपको ओ ई मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ओ डी यहाँ से यहाँ तक है, ओ डी कैपिटल आर है, कैपिटल आर में से ये 5 माइनस कर दिया तो आपको ओ ई मिल गया। तो ओ ए इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस 5। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ओ ई यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस 5। फिल इट, इसको फिल करो, कैपिटल आर माइनस 5। ऊपर क्या था, कैपिटल आर माइनस 9, यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर माइनस 5। अब यहाँ पर देखो, एज द कॉर्ड क्यू ए, आप सर्कल लेसन में इसको पढ़ोगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ओ क्यू इंटू क्यू ओ ए। अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, खाली ये तो ऑलरेडी गिवन में है, तो इसका वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ओ क्यू आपने कितना फाइंड किया, आर माइनस 9, तो ओ क्यू ऊपर है ना, देखो ओ क्यू कैपिटल आर माइनस 9, यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल आर माइनस 9 इंटू आर। ओ ई एंड ओ एफ दोनों इक्वल हैं, डायग्राम में देखो, ओ ई एंड ओ एफ बोथ आर इक्वल। वाई, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो देखो ओ ई एंड ओ एफ बोथ आर इक्वल, सो हियर OE and OF both are equal and OE is also capital R minus 5। तो OE की जगह यहाँ पर भी कैपिटल R माइनस 5 और OF की जगह पे यहाँ पर भी कैपिटल R माइनस 5। क्लियर? अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू गेट आर स्क्वायर माइनस 9R, क्योंकि यहाँ पे R माइनस 9 था ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया R माइनस 5 R माइनस 5, तो r माइनस 5 इंटू आर माइनस 5 मल्टीप्लाई किया तो इट केम आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 25। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद वाला स्टेप आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10r माइनस 9r इज इक्वल टू कितना, 25। यू नो दैट स्टूडेंट, 10r माइनस 9r कैपिटल R बचा, r इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 25। कैपिटल आर कितना आ गया, 25। तो ए क्यू इज इक्वल टू 2r, 2 स्मॉल r है, ए बी माइनस बी क्यू, तो 2r इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी कितना आया, ए बी केम 50, ए बी 50 है ना, ए बी 50 कहाँ से आ गया, फिर से देखो यहाँ पर रेडियस ओ बी 25 आ गया, तो ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू 2r है ना, ए बी इज इक्वल टू 2r ट्वाइस ऑफ रेडियस, ए बी इज डायमीटर, तो 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50। ए बी 50 कैसे आया समझा, तो यहाँ पर ए बी की जगह पे 50 और बी क्यू कितना आया है, 9 आया है। इट इज़ ऑलरेडी गिवन बी क्यू इज इक्वल टू 9 इन द क्वेश्चन, तो 50 माइनस 9 41, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 41/2, 41 को 2 से डिवाइड करो, 41/2 इट इज़ 20.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये सम कंप्लीट हो गया।
पूरा एक बार इसको रिवाइंड करके पूरा फिल करो, और एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर भी मैंने दिया है, उसको आप देख लो ध्यान से कहाँ पे क्या फिल करना है। वी आर मूविंग डाउन। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आपका प्रॉब्लम सेट 7 फिनिश हो गया। In the next lecture we will see another lesson of geometry. Have a good day.